And Iji has been a big support to me in Healy. And then Saket ji. Saket ji actually got me convinced to buy Healy, because being from what I am into, mental health and other things, what Jasleen has told you about, I was looking for this kind of a device where, I could help people without taking any medicines. So somewhere it was there in my mind, but I was not aware about Healy. And I'm so grateful to Saket ji and Avnish ji for introducing me to Healy. And through Healy, it's just been 1.5 years that I've been joined with Healy team. And it has been a wonderful, wonderful experience. But today, when we are starting our session, we are going to talk about mental health, and today is the Mental Health Day. So let's all understand why mental health is so important to all of us. We are talking about physical health, we are talking about holistic health, we are talking about nutrients. And the best thing is, I got everything in Healy only. I used to talk to everyone, the holistic way of healing yourself, body, mind, and soul, and that all is there in Healy. That was a wonderful, wonderful, thing that happened. And जैसे भगवान ने आपकी सुनी ली हो, आप कुछ मांग रहे हैं और भगवान ने आपकी वो बात सुन ली है. So मेरी ये बात सुनी, उसके लिए I am so grateful to everyone. And so we'll understand today why mental health is so important and how we should be kind to our mental health. पहले हमारे it used to be like a taboo कि लोग बताते ही नहीं थे इंडिया में कि दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, या लोगों को पता ही नहीं होता है कि साइंस क्या है, मतलब हमारे को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ये डिप्रेशन है. तो लगता था हाँ सिर्फ एक घबराहट सी हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ अनईजी फील हो रहा है, बस दैट्स ऑल. सो ना उन्हें पता था कि फीलिंग्स कैसी होती हैं, ना उन्हें ये मालूम था कि हमें हैंडल कैसे करना है, ना उन्हें ये कुछ नहीं पता था. एंड थिंग्स यूज्ड टू गेट एग्रीवेट. एंड बस गुस्सा आ रहा है, दैट इज ऑल. गुस्सा आना तो नॉर्मल होता है. तो सबको ऐसे ही लगता था कि गुस्सा आना तो वेरी नॉर्मल, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. सो slowly and slowly awareness are here, and I'm so happy even in India now people are coming forward and talking about mental health. And I'm so happy people organizing these kind of a session. And today on the Mental Health Day, I'm really, really excited that Healy had organized this session, and they are also bringing awareness in the society why these things are so important and it's so easy to overcome. So I'd like to start with my presentation, and we will understand more about it. And if you have any questions, तो हम questions को बाद में लेंगे, और पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे. इन बिटवीन आप चैट में डाल सकते हैं. सो फिर जसलीन, आई थिंक शी विल टेक अप द क्वेश्चंस एंड आई कैन आंसर द क्वेश्चंस. देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑन दैट. तो आई विल शेयर माय स्क्रीन. मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ. एंड आई एम सॉरी, मैं हिंदी में कोशिश करूंगी पूरी की पूरी बात करने की, क्योंकि थोड़ी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश है, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव इट इन हिंदी ऑल्सो. सो वेलकम ऑल. आप सबका स्वागत है आज के संडे के दिन टाइम निकालने के लिए. और आप टाइम निकालेंगे तो ये ना सोचें बड़ा बोरिंग सा होगा, एक लेक्चर टाइप सुनना पड़ेगा. यस, ये थोड़ी सी लिमिटेशन होती है वेबिनार में हमें, कि हमें थोड़ा सा स्लाइड्स देनी पड़ती है, बट हम चैट के थ्रू वी कैन इंटरेक्ट एंड इट विल बी अ इंटरेक्टिव सेशन. और जसलीन उसमें पूरी हेल्प करेंगी. जसलीन विल आल्सो ट्राई एंड मेक इट वेरी इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. एंड इंटरेस्टिंग वे में वी विल ट्राई एंड जस्ट नो, इट्स जस्ट अवेयरनेस कि क्या होता है, क्या टिप्स होते हैं, और कितना इजी होता है उसको ओवरकम करना. और फिर कैसी हैप्पीनेस मिलती है कि आप स्माइल करते रहते हो. और वो जो स्माइल होती है, someone is saying in English, someone is saying in Hindi, so I'll continue with both the languages. Okay, so I cannot speak English and Hindi, I'll try my level best whatever way I can speak, right? So फिर हम कैसे स्माइल करते हुए, इनर स्माइल के साथ हमेशा इस लाइफ को जी सकते हैं. एंड इट्स बिलीव मी इट्स वेरी वेरी इजी टू ओवरकम. सो लेट्स सी हाउ वी कैन ओवरकम. एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन. So is my screen visible? Not yet. Not yet. Not yet. Okay. 1 minute.
Okay. Because I tried giving it. Shall I share the screen? You want me to do it? Yeah, if you can do it, no issue. Okay, yeah, I'll We just try doing it from here also. System preference. But no, it's not happening. You can do it, Jasleen. It's okay. We'll do it with that. Yeah, thank you, Jasleen. Thank you so much. सही टाइम पे आप आ गए हमें हेल्प करने के लिए. Thank you so much for that. So yeah, today's topic is कि how can you be kind to your own mind? So पहले मैं ऑडियंस से जानना चाहूंगी कि आप माइंड का मतलब क्या समझते हैं. व्हाट इज माइंड? कई लोग ब्रेन भी समझ सकते हैं, कई लोग माइंड. तो आप चैट बॉक्स में लिखें हिंदी या इंग्लिश में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइंड. सो डू यू थिंक माइंड इज समवेयर इनसाइड आवर बॉडी, या कोई एक ऑर्गन की तरह है वो, या क्या चीज है? हमें दिखता है माइंड, तो यू कैन जस्ट राइट यस, नो, or where is it located, और क्या आपको समझ आता है. anything that you feel like. I would like to know little from the audience ki what do they understand. If you want to unmute and talk, you just have you can do that. but मन, yes, मन होता है, बिल्कुल ठीक. क्या मन हमें दिखता है? मन दिखता है कहीं पे? जैसे ब्रेन दिख रहा है, हाँ ब्रेन यहाँ पे है. थॉट, यस, थॉट भी लोग लिख रहे हैं. यस, इट्स अ थॉट. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आंसर्स आप दे रहे हैं. और मन या थॉट कहीं दिखता है? नहीं, नहीं दिखता. Mind is brain. No, here we are wrong. It's not, mind is not physical. Yes, that's very right. It's not physical. It is vibration. It's a feeling. Very true. Feeling. See, so our audience knows so much, Jasleen, already. But still, I will like to add some few valuable, knowledge to them. Chit, बहुत अच्छा आप लोग लिख रहे हैं. Thank you for writing all this. So today we will try and understand कि definition क्या है. आपने definition बता दी कि मन है, feelings हैं, thoughts हैं, दिखता नहीं है कहीं पे भी, सिर्फ हम इसे feel कर सकते हैं. हाँ, brain दिखता है हमें, पर brain और mind दो अलग अलग चीज हैं. So this is the first thing that we should know is brain is separate and mind is separate. But yeah, effect you will see. अपने mind के आप effects हर जगह देखोगे, every body part पे हम देखेंगे. सो क्विकली यहाँ पे एक एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मन और कहाँ पे मन से हमारे इफेक्ट्स होते हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इज, आप मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू द इंस्ट्रक्शंस हाउ वी आर डूइंग इट. सो प्रॉब्ली व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि आपको अपना एक हैंड अपने हार्ट के पास में रखना है. प्लेस योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट. और आप अंदर ही अंदर अपने आप को जितना बुरा बोल सकते हैं बोलने की कोशिश करें कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत डरता हूँ, यार मेरे से तो कोई काम ही नहीं होता है, मैं तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, अगर मुझे जूम पे बुला लें इतने सारे लोगों को मुझे एड्रेस करना हो तो आई कांट डू इट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट and I doubt myself, that person is not trustworthy, that person is giving me negative vibes, I don't like talking to such kind of people. तो यहाँ आपको कैसी फीलिंग हो रही है अपने चेस्ट पे और अपने हार्ट के पास? हाउ डू यू फील व्हेन वी टॉक ऑल दिस काइंड ऑफ थॉट्स टू आवरसेल्फ? मन में जब हमारे ये विचार चल रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे कैसी फीलिंग होती है? कोई बताना चाहेगा? यू कैन पुट इट अप ऑन द चैट, और या आप अपना अनम्यूट करके शेयर करें कि आपको यहाँ पे कैसा फील होता है. डू यू फील हैप्पियर, हल्का महसूस होता है या भारी महसूस होता है? सिर्फ ये लिख दे, हैवीनेस. यस, वेरी ट्रू, बहुत हैवीनेस फील होती है. और किसी को हैवीनेस के अलावा कुछ और फील हो रहा है? और हमारे ऑडियंस में से कोई और बताना चाहेगा कि हाउ आर दे फीलिंग? सो आपको लगेगा कि हमारे थॉट्स हमारे मन पे, यस, बैड फीलिंग, वेरी ट्रू, इट्स अ वेरी बैड फीलिंग. अब हम इसका ऑपोजिट करेंगे. नाउ स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ. ओके, कीप योर हैंड हियर ओनली एंड अप्रिशिएट करेंगे हम सबको, अपने आप को, किसी और को नहीं करना, हमें अपने आप को करना है. आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई एम अ हैप्पियर पर्सन ऑन दिस अर्थ. मैं सबसे ज्यादा खुश रहती हूँ, मेरी हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी रहती है. कोई भी चीज सामने आएगी, इतना कॉन्फिडेंस है, वी कैन ओवरकम दैट वेरी वेरी इजी. सो आप जैसे ही ये सब करेंगे
तो फिर बताइए, लाइक यू हैव टू रियली रियली अप्रिशिएट, जितना आप अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने आप को। तो और अच्छा अपने बारे में क्या बोल सकते हैं? आई एम सो हैप्पी, मेरे अंदर बहुत सारे स्ट्रेंथ हैं, आई कैन डांस वेरी वेल, मेरे जैसा कोई डांस ही नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई सिंग ही नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं दे सकता। तो जैसे जैसे आप अपने आप को अप्रिशिएट करना चालू करोगे तो फिर कैसी फीलिंग आ रही है? कैन यू शेयर दैट? यस, सेल्फ लव, यस, हैप्पी, यस, वेरी ट्रू। और साथ में अपने फेस पे भी आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही है, कुछ फिजिकल चेंज हो रहा है, हैवीनेस और ये फीलिंग जॉयफुल, यस। हाउ मेनी ऑफ यू फील एक्साइटेड? हाउ मेनी ऑफ यू फील यस, हैप्पीनेस? सो एकदम से हमें इफेक्ट पता चला ना। दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल बाय हाउ वी कैन चेंज आवर फीलिंग्स। 1 मिनट में हम अपने मन को कैसे पलट सकते हैं। पर पलट क्यों नहीं पाते हैं, या हो क्यों नहीं पाता है, बार बार वो थॉट्स क्यों आ रहे होते हैं हमें? So we will try and see that. So Jasleen, can you just show the slides? I'll start with the slides. Yeah. So next slide, Jasleen. So we'll understand what is mental health. एक हमने एक्टिविटी से तो समझने की कोशिश करी ही कि मेंटल हेल्थ हमारी फीलिंग्स कैसी हुई, हमारे मन से हम कनेक्ट किए तो हम थॉट। तो आपको पता है किसी को कि एक दिन में हमारे पास कितने थॉट्स आते हैं? हाउ मेनी थॉट्स डू वी गेट इन अ डे? एनी आइडिया? आवर ऑडियंस कैन गेस, दे कैन टाइप इन कि कितने थॉट्स आते हैं एक दिन में हमें। कोई गेसेस करें प्लीज। 60,000, यस, मेनी मोर, यस, मिलियंस, मिलियंस तो नहीं आते हैं, approximately, yes, trillions. Yeah, no, there are around 70,000 thoughts that we get throughout the day. एक दिन की अगर हम बात करें, approximately, कोई मतलब फिक्स नहीं है, approximately 70,000 thoughts होते हैं। उन 70,000 थॉट्स में से हमारे कितने थॉट्स, आप एनालाइज करते जाइएगा कि कैसे थॉट्स होते हैं हमारे। सो मेंटल हेल्थ जो है हमारी इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग in which an individual realizes his her own capabilities, can cope with normal stress of life, and can work productively, and is able to make a contribution to his or her organization or a community. देखिए, जैसे आपको फील हुआ, अच्छा फील हुआ, सो छोटे छोटे स्ट्रेसेस तो हम ओवरकम कर लेते हैं, बट थोड़ा बड़ा स्ट्रेस में टाइम लग जाता है हमें ओवरकम करने में। सो आप जैसे ही ओवरकम करते, जैसे ही आप हैप्पी फील करने लगे थे, यू फेल्ट लाइक शेयरिंग, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग जॉयफुल, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप कंट्रीब्यूट करेंगे वॉट एवर यू आर वर्किंग। वी हैव डॉक्टर्स हियर, वी हैव थेरेपिस्ट हियर, वी हैव नेटवर्कर्स हियर। सो आप किन लोगों से मिलना चाहोगे जिनके मुंह पे स्माइल रहती है, जो ऑल द टाइम इरिटेट नहीं होते, दे आर देयर विद यू स्माइलिंग ऑल द टाइम? Yes, psychologist, yes, we have a psychologist also here, and a lot of people are here from different areas. So if they are feeling lighter and they are overcoming their emotions, mental health, एक well-being की तरह उन्होंने काम कर रहे हैं उसके ऊपर, so they can really do their work very very well. So हम बात कर रहे थे thoughts की, we'll come later on that 70,000 thoughts, yes we do get, but we'll just move to the next page. Jasleen, next page please. Yes, so ये थोड़ा सा रिसर्च हुआ था, it's been हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स चलते ही रहते हैं। So how was our mental health before COVID and how was our mental health after COVID? तो COVID का impact सब पे पड़ा है। We've seen from a child going to class 1 to college going student to adults to homemakers, even any profession you take up, there has been a COVID impact. तो इस जो फैक्ट में बताना चाह रहे हैं, इसमें इन्होंने ये बताया है कि पीपल हु आर नॉट इम्पैक्टेड तो डार्क ब्लू में है, somewhat impacted, not impacted at all is in light blue, somewhat impacted is in dark blue, और जो ग्रे है पार्ट इसमें, that's strongly impacted. Okay, so now they are sharing about people who have stayed alone, जो बिल्कुल अकेले थे, तो उनके ऊपर 53% कोविड का इम्पैक्ट हुआ। People who were staying with some people, other people also, so they had 46% of an impact. And people who were staying with their friends or housemates, means a lot of people were staying, we stay alone or we are staying in rooms, rented to rooms, or we are in colleges, hostels में हम लोग रह रहे हैं या किसी के साथ rented apartments में रह रहे हैं,
So उनको impact 41% हुआ. And people who have extended families and they are staying with their extended families, कम impact था 36%. And with their own family, they are staying, हमारे बच्चे, you know, we are all together, our own individual families we are staying with, so 35%. And people who were actually working on it with many significant other, means they were positive, they were staying, you know, and a lot of activities they were engaged during COVID time, still they also they got impacted. Impact was less, but yes, it did impact them. 29% उस पे impact हुआ. So overall अगर हम देखेंगे, so lot of things have changed. बहुत सारे impact की वजह से people who were also very positive, उन पे ऊपर भी काफी impact हुआ. So next slide, Jasleen. So this is again some more facts. जैसे कि हम बताएंगे the share of adults reporting symptoms of जो हमारे पास cases भी आए, like I've been working with lot of cases. So I also got many cases and overall ये facts and figures हैं. Increase हुआ in case of anxiety, depression and disorders. Like mostly people know about anxiety and depression, but then there are many more mental issues. We will be talking about that. So जो सबसे ज़्यादा impact हुआ, that was in the teenage group from 18 to 24, because they are young and they also they have a lot of energy and they want to enjoy, they want to be with their friends, they want to be, you know, outside exploring everything. So it had a great impact, 56.2% impact on all this age group. Then we'll come to the age group of adults from 25 to 49. Yes, this is also your peak time when you work, you are making your careers, you are on the peak of your career. So उस age group में भी काफी impact हुआ, 48.9% लोगों पे impact हुआ है. It's a big impact. And then from people to 50 to 64, 50 to 64, we think people are more mature, people have more, you know, understanding. A lot of people connect with the spirituality also. A lot of people, you know, do a lot of programs to upgrade themselves, to transform themselves in this age group. But then there also the impact was there. 39 thoda kam tha, but then it was there. And adults who were above 65 plus, un pe bhi hua hai, but less. Why? Because of the age factor was there. So in this, we are seeing how the ages are getting impacted because of the COVID and mental health pe unke kya issues aaye. So right now, a lot of people are coping up. Ab jaise things are opening up, so people are coming out. So next slide. Yeah. So a lot of people are overcoming their, you know, problems, and a lot of people are trying to share now. Awareness hui, unhe feelings hua, uneasy hua. So people have started sharing, and a lot of you will see online, jaise things have started. There are so many online helplines are available online. So wo myths logo ke hate, and people are coming forward and they want to change, they want to have a change in their life. एक want होना बहुत जरूरी है हमारे को. अगर हम चाहते हैं तो कायनात आपको कहीं ना कहीं से वो चीज लाके दे ही देगी. एक चाहत होनी चाहिए. अगर हम चाहते ही नहीं है अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करना, then nobody can actually help you. You yourself cannot help yourself in that case. So mental health में एक और चीज आती है, we talk about psychosomatic illness. आप लोगों ने काफी सुना होगा ये word अगर आप किसी psychiatrist या psychologist के पास जाते हैं. So they talk about what kind of they do psychometric analysis पहले आपका करते हैं. So we will understand what is psychometric analysis or what is psychometric illness. Psycho means mind and thoughts. जैसे हमने thoughts की बात की थी कि 70,000 thoughts हमें आते हैं दिन में. Somatic means body. वो हमने realize किया था जब हमने यहाँ पे एक heart के ऊपर अपने hand रखा था and we did that small activity. How is my physical body feeling when I have some negative thoughts? So it's kind of a thoughts and body mixed together is psychometric illness. So you have some thoughts and that is impacting your body and you keep having those thoughts. So you will have more and more impact on your body. And emotional stress, it manifests only on your physical body, right? That is all. You will feel pain, you will have all those kind of symptoms. And environment also, जैसे हमने देखा, COVID has added on
पहले काफी कम केसेस होते थे, they were there. I'm not saying it's not been there, but COVID has added मतलब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, we were just helpless. तो environment जो create हो गया, uncertainty का एक environment आ गया, पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है initially as it came, so it's just added on, increase कर दिया उसने psychometric analysis पे. So next please. And it has grown, the stress level has grown. So causes क्या क्या हो सकते हैं, we will try and see the causes of all these stress, or all how do we get into negative thoughts, क्यों हमें आने लगते हैं. Sometimes it's a childhood abuse. So I'm just taking a general thing right now यहाँ पे. अब मैं कोविड के बारे में नहीं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, जस्ट टेकिंग कि जनरली क्या होता है. समटाइम्स चाइल्डहुड अब्यूज भी होता है, पेरेंट्स खुद ही अब्यूज करते हैं अपने बच्चों को. यार तुम तो गधे हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुमसे तो ये एक्सपेक्ट करना ही बेकार है. व्हेन यू आर गिविंग sarcastically हम बोले जा रहे हैं बच्चों को बार बार, तो वो अब्यूज होता है. एक बार दो बार मजाक में आपने बोला, देन इट्स फाइन कि किड्स हैं, चलो बोल दिया ऐसे ही मजे में, तो इट्स ओके. बट अगेन एंड अगेन एवरी टाइम इफ यू डू इट, सो इट बिकम्स लाइक अ अब्यूज टू अ चाइल्ड. यू नेवर नो वो उस पे ऊपर क्या इम्पैक्ट करने वाला है. लोनलीनेस, yes. But हमारे इंडिया में I've seen lot of people are with families, so we have lot of family support, friend support, and अभी भी joint family में लोग रहते हैं. But जहाँ थोड़ा सा mother और everyone is working and kids are left alone, वहाँ पे थोड़ा सा loneliness का issue हो सकता है. और people जैसे they go for their studies and they are outside and they are staying in an apartment all alone, they don't have a partner. So at that time also people do feel loneliness. And discrimination जहाँ पे लोगों के अंदर होता है, like if we go abroad or we go to US, you go to UK, so there is lot of discrimination against racism. बहुत होता है. racism का मतलब कि हमारा we are white skin, so we are हम better हैं, और ये एशिया से आए, इंडिया से आए, इन्हें कुछ नहीं पता है. so that kind of a racism या discrimination होता है, that can add up to your mental health. सोशल डिसएडवांटेजेस, यस सोशल डिसएडवांटेजेस हम लोग देखते हैं. पॉवर्टी में जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास बहुत लॉट ऑफ डेट्स है, सो प्रॉब्ली दैट एड्स अप टू योर मेंटल हेल्थ, योर माइंड हेल्थ. लूजिंग समवन, this we have experienced during COVID. Lot of people have lost their loved ones. So overcoming that, कि how we can overcome that, तो वो भी एक add on cause हो जाता है आपका for kind of mental stress. Severe and long term stress. Severe means काफी long term से वो चलता ही जा रहा है. It has become kind of your pattern कि आपको कहीं से भी कुछ you are not seeing any hope from anywhere. Physical condition, कईयों के physically weak होते हैं, immune system काफी weak होता है, बचपन से लेके या टीनेज में कुछ हो जाता है या adulthood में कुछ हो जाता है, तो वहाँ आप देखेंगे कि ये होता है. अनएम्प्लॉयमेंट लेटर ऑन, जैसे वो जॉब कर रहे हैं, एकदम से कोविड में इतना अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, सो दिस इज द फैक्टर दैट इज एडेड ऑन टू लॉट ऑफ पीपल मेंटल हेल्थ. पुअर हाउसिंग कंडीशंस, यस हम जहाँ रहते हैं, व्हाट इज आवर एनवायरनमेंट, हमारे इर्द गिर्द किस तरीके का एनवायरनमेंट है. लॉन्ग टर्म केयर टेकर फॉर समवन, यस जैसे कि I've seen in joint families, we have elders staying with us, बड़े लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं. उन बुजुर्ग को जब हमें 2-3 लोग या एक ही बंदा उनकी काफी टाइम से सेवा कर रहे थे, बीन ऑन बेड फॉर 2 years 3 years 4 years, तो ये आ जाता है अंदर ही अंदर कि यार आई एम ऑल द टाइम सराउंडेड विद उनका केयर टेक ही कर रहा है, और उनकी जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यू डोंट हैव एनीथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, यू आर नॉट हैप्पी. सो उसके अंदर ये भी एक कॉज हो जाता है. एंड लोग क्या करते हैं, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, अवेयरनेस नहीं है, तो दे गो टुवर्ड्स अल्कोहल या दे गो टुवर्ड्स ड्रग्स, ये सब लेना चालू कर देते हैं. आई हैव सीन लाइक कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हैज आल्सो गॉन अप आफ्टर इन बिटवीन कोविड आल्सो, राइट नाउ आल्सो. पहले तो था ही अल्कोहल और ड्रग्स का, और अभी और ज्यादा इंक्रीज आया है इसके अंदर. सो डे बाय डे that is increasing, so because all this is less of awareness, or they find a lot of attraction because easily available है ये सारी चीजें आजकल, तो वो एक easy way out उन्हें सबको चाहिए होता है. डोमेस्टिक वायलेंस, यस सम पीपल बचपन में उन्होंने बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, और बचपन में अगर लोगों ने देखा हो
अपनी मदर के साथ कुछ ऐसा हुआ है या फादर कुछ कर रहे हैं, फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है. सो यस, वो गुस्सा आता है तो दे रियली गेट वॉयलेंट, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. तो दीज आर द थिंग्स, ट्रॉमा. सो लॉट ऑफ ऑल दीज एड्स अप बचपन से लेके आज तक हम फिर एक्यूमुलेट करते रहते हैं. तो होता क्या है, क्विकली वी विल अंडरस्टैंड. नेक्स्ट स्लाइड. सो क्विकली वी विल अंडरस्टैंड होता क्या है. सो लॉन्ग लास्टिंग दी साइंस, ये हमारे को फिर वो साइंस आने लग जाते हैं, मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे आपको अपने अंदर, कि आपको इरिटेबल, जो भी कोई बोल रहा है, जरा सी भी किसी ने बात बोली आप इरिटेट हो जाते हो, एंड मूड स्विंग्स बहुत होने लग जाते हैं. स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एंगर, कई लोग मेरे पास आते हैं कि मैम हमारा एंगर बहुत बढ़ गया है पहले से. इजी वे आउट लगता है सब्सटेंस अब्यूज, मीन्स अल्कोहल लेना ज्यादा से ज्यादा. आई सीन लॉट. पहले तो वो एक दो से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स के साथ, फिर जब कंडीशंस आउट ऑफ कंट्रोल या उन्हें वे आउट नहीं समझ में आता तो इजी वे आउट होता है कि ओके, start taking lot of drinks, have that environment, go with that kind of people. Withdraw करने लगते हैं अपनी फ्रेंड से, फैमिली से बात नहीं करेंगे, फोन पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, नॉर्मल एक्टिविटीज को एंजॉय नहीं करते हैं, एंड ज्यादा सोने लगेंगे, और दे विल ईट. आई हैव सीन ड्यूरिंग कोविड लॉट ऑफ दिस वाज आल्सो अ प्रॉब्लम. घर पे रहने से बहुत खाने लगे थे लोग. दे स्टार्टेड ईटिंग आफ्टर एवरी 2 hours, एंड उसके अंदर शुगर भी खा रहे हैं. ऑल अनहेल्दी फूड भी काफी लोगों ने भी खाया, और हेल्दी भी खाया है. जब लॉकडाउन था तब हेल्दी खाया है, पर जैसे ही ओपन होता है फिर लोग अनहेल्दी की तरफ एकदम से दे स्टार्ट ईटिंग सो अनहेल्दी फूड. So that also is a symptom of being not feeling good mentally. और फिर उसके बाद आपको लो एनर्जीज फील होने लग जाती हैं, और मूड में तो वीव सीन दैट अल्कोहल एंड निकोटीन का हमने किया. नेगेटिव इमोशंस आने लग जाते हैं. उनसे आप बात करोगे, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये नहीं हो रहा, मैं तो हूं ही बेकार, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. सेल्फ डाउट्स में बहुत आ जाते हैं, या दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कुछ क्लैरिटी उन्हें नहीं होती कि लाइफ में करना क्या है. गोल्स नहीं होते हैं उनके पास कुछ भी करने को, अपने डेली टास्क भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, and they do physical harm also, and they live under delusion only. So इसके अंदर एक ऐसा, I would like to add one more thing. Yeah, you can go to the next slide, it's okay. So I would like, जो मैंने आपको बोला था बचपन से होता है, yes, I do lot of fingerprint analysis. तो उसके अंदर भी हमें फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है कि आपके पैटर्न्स के अंदर किस तरीके के पैटर्न्स हैं. एंड आई हैव केसेस जब मेरे पास आते हैं तो आई हैव सीन उनके डीएनए में भी होता है यही चीज. So in that case, the family they need lot of family support. पता ही नहीं होता पेरेंट्स को कि ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, उन्हें हैंडल कैसे करें, कुछ नहीं पता होता, बस परेशान रहते हैं वो. सो विद दिस टेक्निक्स, अब हमारे पास बहुत टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये डीएनए में ही तो नहीं है. व्हेन आई टॉक टू देम दे सेड यस, हमारे एंसेस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम थी, बट जब बचपन में छोटा है बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो हम कैसे पता करेंगे कि ही इज फीलिंग, हाउ इज ही फीलिंग. सो वी हैव टूल्स अवेलेबल फॉर दैट आल्सो. या ड्यूरिंग लॉकडाउन जो बढ़े हैं केसेस, जैसे हमने देखा स्टैटिस्टिक्स के थ्रू लॉट ऑफ केसेस हमारे बढ़े हैं. अनसर्टेनिटी बहुत आ गई थी लोगों में कि क्या होगा. इनिशियली तो ठीक था, एवरीबडी एंजॉयड, वाओ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, घर पे आराम से वी आर गेटिंग अप, वी आर एंजॉयिंग, वी आर सबके साथ. बट जैसे जैसे वो बढ़ता गया, अनसर्टेनिटी की फीलिंग्स हमारे अंदर बढ़ती गई. हेल्थ की कि क्या होगा, हमारी हेल्थ जिसको इश्यूज थे, हमें भी तो हो गया अगर कोविड, तो हमारा क्या होगा, आर वी गोइंग टू डाई, आर वी गोइंग टू सर्वाइव. ऑल दीज क्वेश्चंस स्टार्टेड कमिंग अप इनटू योर माइंड. उससे एंजाइटी बढ़ने लग जाती है, एंड इट इम्पैक्टेड होम मेकर्स अ लॉट. क्योंकि पहले उनका एक स्पेस होता था, सब चले जाते थे तो दे यूज्ड टू हैव देयर ओन स्पेस टू डू समथिंग. अब उनका वो स्पेस नहीं रहा. नाउ दे हैड टू गिव देयर टाइम टू द फैमिली, एवरीबॉडी इज एट होम. इनिशियली सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट देन इट बिकम्स लाइक डेली रूटीन फॉर 3 months 4 months. सो सबको अनकंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज एवरीबडी नीड्स देयर ओन स्पेस. हम सबको अपनी एक स्पेस चाहिए होती है जहाँ पे हम we can talk to ourselves or whatever we like, हम लोग कर सकते हैं. वर्किंग वुमेन को भी हो गया, they had so much of stress कि घर भी देखना है, no help coming, लॉस ऑफ जॉब्स हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफी बढ़ी हैं, ईटिंग डिसऑर्डर. सो ऑल दीज थिंग्स हैव एडेड अप, सबने ऐड कर दिया मेंटल हेल्थ पे. नेक्स्ट प्लीज.
So can anyone would like to share if they had any kind of these symptoms? तो आप chat box में लिख सकते हैं कि during COVID or right now also if they're having any kind of कि ज़्यादा सोने लगे हैं या fear है या अभी भी uncertainty है, so you can write in the chat box so that we can understand, okay, there is something, you know, still now people know about themselves, they know about the feelings that they are going through. So depression तो हर एक एज ग्रुप में हुआ है, causes after lockdown के बाद भी like जो cases बढ़े हैं, so yes, lot of depression in all age group. Even if I speak about my own child, he was also very unhappy. He said, no, I can't go out, my life is like physical, खेलना all the time, खेलना कूदना, and I'm totally online now, I have nothing to do. So of course they were quite depressed, everyone was quite depressed. Stress leading to psychosomatic illnesses that we understood, anxiety, fear, uncertainty and grief and loss. वो तो अभी भी बहुत है. I get lot of cases where people are struggling, they've lost their loved ones and उनका मन नहीं लगता है काम में, बिल्कुल भी productivity पहले जैसी नहीं हो पा रही है. So that has added up. And technology addiction कोई भी हो, हमारे मन को नहीं पता होता है कि आप अल्कोहल से एडिक्ट हो रहे हैं या आप टेक्नोलॉजी से एडिक्ट हो रहे हैं या आप ईटिंग से एडिक्ट हो रहे हैं. एडिक्शन मींस एडिक्शन. एंड कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडिक्शन? होता क्या है एडिक्शन? अगर आपको पता हो तो क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडिक्शन. एक बहुत ही अच्छी इसकी डेफिनेशन आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. सो इफ आप फटाफट लिख दें कि एडिक्शंस क्या होता है. Yeah, you start craving for it. Habits, yes, Justine. Habits, yeah, kind of habits. And anything else? Habitual, yeah, Harsha ji. Yeah, so all the time having a craving. Yeah, you cannot live without the stuff. Yes, that's right. You cannot live without that stuff. Craving होने लग जाती है बार बार हमें. So that is addiction. Yes, feel good after, want to repeat the same pleasure. Yes, you start getting the pleasure from that. It's no more, yes, very true. Very true. Compulsion, dependence. Yes. So, you know, you become your dictionary में मैंने कहीं पढ़ा था, इसका meaning actually होता है you become slave of your own self. So ये जो सारी आप लिख रहे हैं wonderful doing things. So हम नशा, yes, अवनीश जी, नशा भी इसको हिंदी में बोलते हैं. पर सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी कि हम खुद अपने ही, and you know there is a very wonderful story I would like to share. It's a very old story. जब Egyptian time में there were kings और उनके बहुत सारे नीचे काम करने वाले लोग होते थे और वो लोग काफी अपने अपने जो जूनियर्स या जो उनको वो रेडी करते थे वॉर पे भेजने के लिए, उन लोगों को वो वॉर पे भेज देते थे और वो वॉर पे जाते थे एंड दे यूज्ड टू डू इट. लड़के जब वो वापस आते थे तो उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा होता था. जो वहां वो गुस्सा निकालते थे वो इधर आके भी बहुत सारा अपना वापस जब वो आते थे रिहैब अपने सेंटर्स में या जो बच के वापस आते थे, सो दे यूज्ड टू हैव लॉट एंड लॉट ऑफ एंगर एंड वो एंगर ही निकालते रहते थे अपना ऑल द टाइम. एंड द किंग यूज्ड टू, उन्होंने उसका जो नाम रखा था एडिक्शन, उन्होंने उसका नाम ही एडिक्शन रख दिया क्योंकि अब आप उन्होंने स्लेव बन गए हो, आप आप अपने ही गुस्से के स्लेव बन गए हो. सो उसका नाम किंग ने उन सब लोगों का नाम एडिक्शन रख दिया था. सो आई रियली लाइक दैट कि मैंने कहा हाउ वी गेट एडिक्टेड और हमारे मन को कुछ नहीं पता होता है. इट्स प्रॉब्ली द फीलिंग. सो वी विल सी हाउ दिस फीलिंग सीप इन, हमारे अंदर घुस कैसे जाती है और हमें अनअवेयर होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर घुस रही हैं. So we will see how they go in. We will try and understand. Yes, next slide please. So ये सारी manifestations होती हैं, इतनी सारी like normally you all know कि anxiety होती है या mental disorders होती है, bipolar भी होता है, schizophrenia भी होता है, हमें ADHD भी होता है, so OCD भी होता है, parasomanic भी होता है. So there are so many manifestation of one thing that are our thoughts, our mental thoughts and all those things. So please can we move forward? Yeah, gambling भी अगर आप उसमें देखेंगे. So we now try and understand through little scientific view and little through psychological view and little through our yogic culture also. Very quick it is.
तो हमारे पास कैसे ये मतलब हमें पता भी नहीं चलता, एंड हाउ वी गेट इनटू द चक्र व्यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो अगर हम इसको ब्रेन की एस्पेक्ट पे समझना चाहेंगे, so there is a very beautiful brain fact: neuron that fire together are wired together. तो जो भी एक आप नीचे पिक्चर में भी देख पाएंगे कि आपने जो भी थॉट, एवरीथिंग, ये लाइक यू नो वी आर अंडरस्टैंडिंग थ्रू हीली ऑल्सो, कहीं पे भी आप सुनेंगे. सो देयर इज अ वाइब्रेशन, देयर इज अ वाइब्रेशन. जो भी आपने थॉट डाला है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उसका एक वाइब्रेशन है. सो आप पिक्चर में देखेंगे कि नेगेटिव थॉट आपने जैसे ही डाला है, एंगर के कंटिन्यूअसली वो फीलिंग्स और वो थॉट आ रहे हैं, तो रेड लाइट इसमें से ये निकलनी चालू हो जाती है हमारे न्यूरॉन्स में से, एंड दे वायर टुगेदर. अगर आप इधर देखेंगे, थ्रू रिपीटेशन द ब्रेन इज वायर्ड. तो वो न्यूरॉन्स हमारे वायर होके, और एक जगह वायर मतलब गुच्छा होके बन जाते हैं. अगर रेड रेड आप कर रहे हैं, एंगर एंगर कर रहे हैं, तो वो एक कॉलोनी उसकी बन जाएगी पूरी रेड वाले न्यूरॉन्स की. यस, इट्स लाइक अ कॉलोनी आपने अपने यहाँ पे बिल्डअप कर लिया है, बिकॉज यू आर रेपिटेटिवली डूइंग दैट बिहेवियर. रेपिटेडली आप, वो ट्रिगर भी हो सकते हैं बाद में, ठीक है, आपने उसको हैंडल कर लिया, बट वो ट्रिगर भी हो सकते हैं, कभी भी ट्रिगर हो सकते हैं. इसके अंदर एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, आप लोग ट्राई करिएगा जरूर व्हेन यू आर डन विद दिस वेबिनार. तो आप एक कोक की बॉटल लीजिएगा, शेक करिएगा उसको, खूब शेक करिएगा, एंड ट्राई टू ओपन द कैप ऑफ द बॉटल. क्या होता है अगर हम उसका कैप ओपन करेंगे? कैन एनीवन राइट ऑन द चैट बॉक्स? अगर हम उसका कैप ओपन करेंगे तो क्या हो जाता है? इट बर्स्ट आउट. एग्जैक्टली, इट बर्स्ट आउट. तो एग्जैक्टली यही होता है. और हम अगर उसको, ये ट्रिगर हो जाता है, यू नो, हमारे नीचे के इमोशंस, बार बार कोई हमें कुछ बोल रहा है या वो सिचुएशंस में हम आ रहे हैं, यस, गशेस आउट ऑल द वाटर एंड ब्रश. सो इमोशंस के साथ भी यही होता है. अगर बार बार हम कर रहे हैं, अगर हमने उसे सप्रेस कर दिया है somehow with the medicines and all those things, हमने सप्रेस कर दिया, वो नीचे सेटल्ड है, पर वो सिचुएशन आई, फिर वो सिचुएशन आई, तो इट कम्स आउट. इसको ट्रिगरिंग बोलते हैं, कि वो ट्रिगर आउट हो जाते हैं हमारे वो इमोशन, और हमें कंट्रोल में नहीं रहते हम अपने, बस वो ऑटोमेटिक निकल आते हैं. कहते हैं यार मैं गुस्सा तो नहीं करना चाह रहा था, पर वो निकल आया, पता नहीं कैसे निकल आया. ऐसा होता है? यस या नो में जल्दी जल्दी टाइप करें कि ऐसा होता है आपके साथ. क्या आप बोलते हैं मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, मैं उसको डांटना नहीं चाहता था, मैं अपसेट नहीं होना चाहता था? यस, होता है ना. सो थैंक यू. ये हम सबके साथ होता है. सो हमें समझना बहुत जरूरी है कि बहुत कुछ यहाँ पे वायर्ड हुआ है, जिसको आपको खोलना है. ये अननोइंगली बहुत कुछ हमने वायर करा हुआ है. सो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जसली. या सो इसको एक लूपिंग बोलते हैं, कि हमारे लूप्स बन जाते हैं. जैसे बूमरैंग में आपने बैठे हो, बचपन में कौन कौन बैठा है ये बूमरैंग में, या यहाँ पे हम लोग, यू नो, कोई भी फेस्टिवल होता है, ये लगते ही हैं, दीज काइंड ऑफ स्विंग्स यू विल सी एवरीवेयर. आई यूज्ड टू लव टू सिट ऑन दीज, मेरे को अभी भी अच्छा लगता है. बट आई कुड रिलेट कि वो गोल 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 गोल, यू नो, इट्स लाइक अ लूपिंग एंड यू डोंट नो, चक्रव्यूह की तरह. जैसे आपने, हमने महाभारत में सुना ही है कि चक्रव्यूह में जाना उसको पता था अभिमन्यु को, पर उसने वूम में ही अपनी मदर से सुन लिया था सब कुछ. सो यस, इट डज इफेक्ट व्हेन यू आर प्रेग्नेंट आल्सो, दीज काइंड ऑफ थॉट्स. एंड उसने नहीं सुना था कि कैसे बाहर आते हैं, तो इसलिए उसको वो नहीं था. So your beliefs becomes your thoughts becomes your words becomes your action becomes your habits becomes your value, and your value becomes your destiny. So हम अपनी डेस्टिनी अपने आप अपने थॉट से, हर चीज से अपने आप ही क्रिएट करते हैं. कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस. सो क्विकली आई विल जस्ट टेल यू कि हम ये लूप से बाहर कैसे आ सकते हैं. एंड ब्रेन लेवल पे न्यूरॉन्स तो हमने बिल्ड कर लिए हैं, और वो कॉलोनीज बन गई हैं, और डीएनए में भी हमारे साथ आ सकती है. हमारे एंसेस्टर्स के अंदर जब ये कॉलोनीज बन जाती हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को पास होती ही होती हैं. सो दैट इज हाउ बचपन से भी किसी किसी लोगों में ये टेंडेंसीज होती हैं. सो हमारे ब्रेन के लेवल पे हम अगर समझेंगे, नीचे का जो ये एरिया है, जहाँ पे हॉलो सा आप देखेंगे आपके स्पाइन से और आपका ब्रेन जो कनेक्ट होता है, उसको हम रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं. और इस रेप्टिलियन ब्रेन के अंदर सर्वाइवल, अगर आप इन्वायरमेंट में भी देखेंगे, तो जब सबसे पहले हाउ द यूनिवर्स स्टार्टेड वर विद द रेप्टिलियंस.
रेप्टिलियन में कौन कौन आता है? कैन यू जस्ट टाइप इन क्विकली दोज नेम्स, एनिमल्स जो आपको रेप्टिलियन में समझ में आते हैं, कौन से वो एनिमल्स होते हैं जो ओनली दे कैन सर्वाइव, दैट्स ऑल, दे डोंट हैव एनी एल्स. Yeah, you have a spiny frog. Okay. I just want to know the reptilian. जो snakes, yes, snakes, very true. और कोई आप जानते हैं किसी को? Crocodiles, yes. तो initially आप देखेंगे who don't have spinal cord, exactly. Lizard भी होती है, yes. तो ये इनका क्या होता है? इनका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सर्वाइविंग मोड पे होते हैं ये लोग. For them that is the most important thing to survive. That's all उनका काम होता है, उनके ब्रेन का, और कुछ काम नहीं होता है. जो सामने आया पकड़ा, grab and survive. बस survive करना है by hook or crook. They need to survive, right? So हमने भी जब हमारा भी as we started, so the universe started like this. And then slowly and slowly with the kind of evolution जो evolve हो रहा है हमारा, like we have evolved lot by now, but now we evolved into mammals. So mammals में कौन कौन आता है? क्या हम लोग mammals में आते हैं? Quickly can you type yes or no? Do we belong to mammal family or we don't belong to mammal family? Yes, we do belong to mammal family. Wonderful. So mammals में और कौन आते हैं जिनके पास emotions होते हैं, जो pleasure feel करते हैं, या they avoid pain? So all these things, monkeys, dolphins, yes, very true. And there is a spinal cord also, animals, yes. So we all have emotions. Plants उसमें आ सकते हैं? Do you think plants उसमें आएंगे mammals के अंदर? Cow, yes, very true. No, yes, plants don't come. Not all beings, yes, only mammal has a different we know what mammals are into. We are also. And then आता है mammals के अंदर emotions होते हैं, वो हमारे center में, mid brain में होता है. Sometimes it's called amygdala यहाँ पे होता है हमारे, जो हमारे emotion से related होता है. amygdala के अंदर हमारा अंदर और भी जाएंगे हम, तो हिप्पोकैम्पस होता है. देयर लॉट ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड दैट, एंड वो हाईजैक्ड हो जाता है जब हम लोग वी आर मेंटली एंगर हो रहे हैं, या गुस्सा निकाल रहे हैं, या इरिटेशन हो रही है, या समझ में नहीं आ रहा है. पहले तो हमने वो कॉलोनीज बना ली, अब कॉलोनीज के बाद वो ही चीज आएगी जो हमने यहाँ पे कॉलोनीज बनाई हुई है, और इमोशनली हमने बनाया हमारा